سٹی چیئرمین حمزہ کمال فرید ملک صاحب کے ساتھ، جو کہ سابقہ بلدیاتی انتخابات میں سب سے کم عمر ترین امیدوار تھے اور انہوں نے بھرپور مقابلے کے ساتھ مٹھن کوٹ سٹی کے اندر 9-3 کی لیڈ سے اپنے آپ کو چیئرمین منتخب کروایا تھا۔ اب ہم آتے ہیں حمزہ کمال فرید ملک صاحب کی طرف اور ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کی سیاسی زندگی اور سماجی زندگی کے بارے میں سوالات کریں گے، جو سوالات ہمارے آپ تک پہنچانا ضروری ہے، اور ان سوالات سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ ابھی تک ناواقف ہی ہوں گے، کیونکہ آپ نے ان کی ابھی تک صرف سیاسی زندگی دیکھی ہے۔ تو حمزہ صاحب، ہمارا آپ سے سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا بچپن کیسا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، جس طرح ہر کسی کا بچپن بڑے اچھے طریقے سے گزرتا ہے اور بڑے بہترین طریقے سے، اور بچپن جیسی زندگی جو ہے وہ دوبارہ نہیں آتی، باقی سب کی طرح جو بچپن ہے وہ بڑی موج مستی اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ہے۔ بچپن کے بعد آپ نے اپنی مطلب کہ تعلیم کا سلسلہ جاری کیا ہوگا، اس تعلیمی دور کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتانا چاہیں گے کہ آپ نے کس طرح سے مطلب کہ اپنی تعلیم اور اس کے بارے میں مطلب کہ آپ نے کس طرح سے محنت کی اور کیا مطلب کہ ایجوکیشن کے سلسلے میں آپ نے کہاں ٹریولنگ کی؟ جی، ایجوکیشن کے سلسلے میں کیونکہ ہمارے یہاں پہ بدقسمتی سے اس علاقے میں ایجوکیشن کی جو سہولیات ہیں وہ بالکل ہی جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کلمیہ ہے، اور اس کے لیے ایجوکیشن کے لیے لاہور، ملتان اور اس طرح دوسری جگہوں پہ جو ہے جانا پڑا، جہاں سے اپنی جو ہے کہ تعلیم مکمل کی، اور وہ کرنے کے بعد واپس آ گئے۔ جی، اس دور کے اندر آپ کے مطلب کہ اپنی بھی ایک پی آر اور اپنے ریلیشنز وغیرہ قائم ہوئے، اس دوران آپ نے کوئی مطلب کہ اسی وقت سے آپ نے اپنی آپ کو سماجی سائڈ پہ کر لیا تھا یا صرف ایجوکیشن کی طرف ہی رہے؟ نہیں جی، ایجوکیشن کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ اور اپنے ایک پرسنل لائف میں، کیونکہ اس وقت تو والد صاحب سیاست کو دیکھتے تھے اور انہیں کا کام تھا، تو ہم تو فل ٹائم جو ہے وہ اپنی پڑھائی اور موج مستی اور سیر و تفریح۔ آپ کے والد صاحب کا اس شہر فرید مٹھن کوٹ کے لیے ایک کلیدی کردار تھا۔ میں تو یہ سمجھوں گا کہ اگر اس شہر کو کہا جائے کہ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر اس شہر کو جانا گیا ہے تو وہ کمال فرید ملک صاحب کی محنت، اسٹرگل اور مطلب کہ ان کی اس شہر سے محبت کی وجہ سے اس چیز کو جانا گیا ہے، تو اس بات کو کوئی بندہ بھی نگلیکٹ نہیں کرے گا۔ تو آپ کو والد صاحب کے دیے ہوئے نام سے کتنا فائدہ حاصل ہوا اور آپ نے اس کو کس طرح سے اس کو آگے پروان چڑھایا؟ ظاہر ہے جی، انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز جو ہے وہ کالج دور سے ہی کر دیا تھا۔ انہوں نے بہت ہی اس شہر کے لیے اور اس کے صحت کے لیے ایک بہت بڑی جد و جہد کی ہے، اور یہ اسی ڈیووشن کا، جد و جہد کا اور خلوص کا نتیجہ ہے کہ عوام نے بھی ہمیشہ ان سے اسی طرح محبت کی ہے اور اس سے بڑھ کے محبت کی ہے، اور یقیناً ہماری کامیابی میں بھی جو سب سے بڑا ہاتھ ہے ان کی محنت کا، ان کے خلوص کا اور ان کی محنت کا ہے۔ تو اس فیکٹر کو تو آپ کبھی بھی نہیں نکال سکتے، کیونکہ جو خدمات اس علاقے کے لیے، اس وصیب کے لیے ان کی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور کی اتنی خدمات ہیں یا ہم اس لیول تک یا اس خدمات کے جو ان کا جو لیول ہے اس تک کبھی پہنچ سکے۔ لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا کوئی تھوڑا بہت بھی اگر ڈلیور کر جائیں یا اس کا تھوڑا بہت بھی کور کر جائیں تو وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اچھا، تو تعلیم کے بعد آپ کا پروفیشنل زندگی کا آغاز ہوا، تو پروفیشنل زندگی میں آپ نے بزنس سیکٹر میں کیا کیا کامیابی حاصل کی اور بزنس سیکٹر میں آپ نے مطلب کہ کس کس بزنس کو اپنایا اور آپ کے اس وقت کیا کیا بزنس ہیں؟ سیاستدانوں کے لیے میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں اس سوال کی جانب اس لیے آپ پہ تنقید ہوتی ہے بہت زیادہ، تو اس تنقید کو میں اس پروگرام کے ذریعے بھی کلیئر کر سکتا ہوں کہ پہلے آپ کے بزنس پوچھوں گا، اس کے بعد میں پالیٹکس کی طرف پوچھوں گا۔ ظاہر ہے جی، پالیٹکس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمانداری سے یا اپنی صحیح ڈائریکشن میں پالیٹکس کرنی ہے۔ تو روزگار کے لیے انسان کو مختلف جو ہے وہ
इसी तरह कुछ हमारे भी छोटे मोटे जो हैं काम हैं जिसमें हमारी ज़मीनें हैं, उनकी इनकम है, हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उनकी इनकम है, यूथ फ्रेंचाइज है, और इसी तरह से छोटे मोटे और शुगर हैं। उनकी वजह अल्लाह का शुक्र है जो ज़िंदगी का कारोबार है वो बड़े अच्छे तरीके से। अब मैं आपकी सियासी ज़िंदगी की तरफ आऊँगा। एक हादसा हुआ, वो हादसा आपकी फैमिली के लिए जो सबसे बड़ा है, जो नाकाबिले बड़ी तकलाफ़ी है, वो इस शहर फरीद मिठनकोट के लिए भी बहुत बड़ा है। तो उसके फ़ौरन बाद ही आपके कंधों पर सारी जिम्मेदारियाँ डाल दी गई। तो उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आपने क्या उतार चढ़ाव देखे, क्या मुश्किलात देखी, उस बारे में हमें सिर्फ 1 मिनट का आप बताएंगे कि आप उस ज़िंदगी को किस तरह से देखती हैं। जी बिल्कुल, कमाल साहब की वफ़ात के बाद बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी थी एक पूरे शहर की, पूरे वसीयत की, जिसको निभाना हमारे लिए इस उम्र में मुमकिन ना था। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से हमारे लोगों ने, हमारे शहर के लोगों ने, हमारे ग्रुप के लोगों ने, हमारे वसीयत के लोगों ने आगे बढ़ के हमारी सपोर्ट की और जिस तरीके से हमारा साथ दिया है, तो ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ जो है वो हमें एक आप समझ लें कि रूही के बराबर भी नहीं महसूस हुआ। क्योंकि जब आपके साथ मुखलिस और मोहब्बत करने वाले दोस्त और साथी मौजूद हों, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुश्किल या कोई भी रुकावट इतनी बड़ी है कि आप उसे पार कर सकें। यकीनन बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन इसका बोझ उठाने में जो मेरे वालिद साहब के साथियों ने, दोस्तों ने और ग्रुप ने और जो एहलियान शहर फरीद ने जो किरदार अदा किया है, जिसकी वजह से ये रुकावटें और ये बोझ हमें महसूस करते हैं और बड़े आसान तरीके से मामला जो है सर अंजाम। सियासत में आप सबसे कम उम्र तरीन चेयरमैन बने इस पाकिस्तान के, तो आपके आइडियाज़ भी नए होने चाहिए। तो उन आइडियाज़ को क्या आप सब चीज़ों से हट कर क्या अप्लाई कर सके इस शहर के लिए? क्योंकि हर्डल्स भी होती हैं, मुश्किलात भी होती हैं, इंसान ज़ाहिर है कि नए आइडियाज़ के लिए नई हर्डल्स भी होती हैं, क्योंकि जब आपने हजूम से हट के चलना हो तो उसके लिए मुश्किलात भी इतनी पेश आती हैं। कुछ आइडियाज़ आप कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट भी हुए होंगे, कुछ मैक्सिमम जो है वो रह भी गए, क्योंकि आप सब खेल में है कि बल्दियात को जो है वो चलने नहीं दिया गया। हमेशा की तरह जो रिवायत चली आ रही है कि चेयरमैन मुंतखब होते हैं, बल्दियाती इदारे मुंतखब होते हैं, उसके कुछ अर्से बाद उनको रिजॉल्व कर दिया जाता है। हालिया इलेक्शन के बाद भी इसी तरह का हुआ कि हमने कोई 1-1.5 साल बाद भी जो है बल्दियाती इदारों को जो ख़त्म कर दिया गया, जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो पाइपलाइन में थी, जो कि आगे हमारे मंसूबे थे, जो कि हो जानी चाहिए थी। ये अचीवमेंट्स बताएंगे पॉलिटिकली तौर पे और समाजी ज़िंदगी में? अचीवमेंट्स ही सबसे पहले तो हमारा इलेक्शन है, उसमें जिस तरीके से, जिस लीड से लोगों ने हमें जो है इदारे में मुंतखब करके भेजा है, मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब की सबसे ज़्यादा लीड में से सबसे ज़्यादा जो है सीट्स कोट मिठन उनमें से एक ही होगा। तो ये सबसे बड़ी खुद एक अचीवमेंट थी। और चेयरमैन बनने के बाद अचीवमेंट्स तमाम नामों के जो है सामने हम अकेले नौजवानों का इस तरीके से लीड के साथ मुंतखब होना, मैं समझता हूँ ये इन शहर वालों की मेहरबानी से हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाकी कम अरसे में कोशिश तो ये की है कि जो फंड्स हमें अवेलेबल थे उसमें जो गलियाँ और जहाँ पे सीवरेज का मसला था, हमने उसको हल करने की पूरी कोशिश की, जिसमें हमारी मेन गलियाँ हमने कोशिश की है कि उन एरियाज़ को टारगेट करें, ना कि कोई ताल्लुक़ की बेस पे कि जहाँ पे हमारे रिसोर्सेज जितने लग रहे हैं उतने लोग की तादाद में ज़्यादा होंगे। मतलब उस अगर हम 100 रुपये लगा रहे हैं तो उससे मैंने आपकी इस इंटरव्यू से पहले ज़िंदगी को 3-4 दिन स्टडी किया है। स्टडी करने के बाद मैंने देखा है कि आप मतलब कि एक कम उम्र में मतलब कि आपके ऊपर जिम्मेदारी डली, जो सब जानते हैं, और आपकी वो उम्र नहीं थी कि मतलब जिसको मैच्योर कहा जाए, ठीक है। तो उस उम्र में आने के बाद आप चेयरमैन बने, लेकिन आपको मोहब्बत देने के बाद कुछ तरफ से उस चीज़ को भुलाकर तनकीद का बहुत ज़्यादा सामना किया गया। हालांकि आपकी वो तनकीद ना की जाती, आपकी गलती की इस्लाह की जाती है। उस चीज़ को आपने किस तरह से डिफेंड किया, उस चीज़ को आपने किस तरह से बर्दाश्त किया, बेयर किया, हालांकि आपकी उम्र भी उस वक्त बहुत छोटी थी। इस बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपके क्या उस वक्त जज्बात हो रहे थे? सबसे पहले तो जो मैच्योरिटी है उसका ताल्लुक मेरा नहीं ख्याल उम्र से होता है, उसका ताल्लुक जिम्मेदारियों से होता है और एहसास ज़िम्मेदारी से होता है।
दूसरी बात यह है कि तनकीद दो तरह की होती है। एक तनकीद जो होती है वो बिला वजह तनकीद होती है, जो कि अक्सर आपके मुखालफी काम का आपको करते रहते हैं। मेरे ख्याल में इस तरह की तनकीद को तो इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि जिस तनकीद के पीछे कोई मकसद ना हो और बिला वजह हो, वो सिर्फ आपको काम से रोकने के लिए या आपके रास्ते में रुकावटें डालने के लिए होती है। तो इस तरह की तनकीद पे कान नहीं धरने चाहिए, ना ही मैं धरता हूँ और ना ही उसका आपको कोई फ़ायदा होता है, ना ही नुकसान होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप अब इस दवाजी ज़िंदगी से मुंसलिक हो चुकी हैं, तो आप इन दोनों ज़िंदगियों को किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं? मेंटेन ज़ाहिर है, इंसान को हर चीज़ को साथ साथ लेके चलना पड़ता है, लेकिन पब्लिक कोई फिगर हो या कोई पॉलिटिकल फिगर हो, उनके लिए अपने बाकी मामला को डील करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सामने वाले की जब बात को समझें और आपकी मुश्किलात को समझें तो आसानी हो जाती है। जब लोगों के लिए काम कर लें तो कुछ छोटी मोटी जो है तकलीफ़ें या तंगी जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ती है। बाकी अल्लाह का शुक्र है सर। सिर्फ एक जवाब देंगे, अल्लाह ताला अगर आपको आने वाले वलियाती इलेक्शन में कामयाब करता है तो सबसे पहला आपका गोल क्या होगा? सिर्फ एक जवाब। हमारा एक गोल तो आप नहीं सेट कर सकते, लेकिन हमारा आप कह लें कि हमारे ग्रुप का या हमारी सियासत का जो मेंबर है वो सबसे पहले तो है जी, देखिए डेवलपमेंट काम जो है वो तो हर किसी का हक है, वो होते रहते हैं। नहीं, जिस तरह से इंसान की ख्वाहिश होती है कि वालिद साहब के नाम पे हॉस्पिटल, वालदा के नाम पे, और जिस तरह से मतलब इस तरह का एक इज्तिमाई काम, जिससे इस तरह का एक गोल आपका, देखिए वो हमारे गोल नहीं है, वो हमारी जो है ना एक आप कह लें कि नॉर्मल लिस्ट में शामिल है। हमारा जो मेन सियासत का पर्पज़ है वो है अगर हम लाहौर से यहाँ आके इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं तो उसका पर्पज़ ये है कि यहाँ के लोगों की जो इज़्ज़त नफ्स है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे इस माशरे में काफ़ी सारी जो है वजूहात की बिना पर लोगों को मैसर नहीं हुई। तो सबसे पहला जो हमारा सियासत का मकसद है वो है लोगों की इज़्ज़त नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ करना। हर गरीब को, हर किसी को, हर शहरदार को उतना ही हक़ है जीने का, ज़िंदगी गुजारने का, और किसी भी चीज़ पे जितना कि किसी और को है। तो हमारी सियासत का चाहे हम पावर में हो ना हो या जिस स्टेज में भी हो, तो हमारा पहला मकसद ये है। बाकी जहाँ तक रह गई डेवलपमेंट काम की बात आप कर रहे हैं, तो उसमें कोई एक स्पेसिफिक गोल करना मैं नहीं समझता टारगेट करना कोई अक्लमंदी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे महरूमी इतनी है कि हमें हर फील्ड में हर जगह पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। आप अगर गलियों में चले जाएँ तो गलियाँ नहीं हैं, आप हॉस्पिटल में चले जाएँ तो हॉस्पिटल में सहूलतें नहीं हैं, अपग्रेड नहीं है, आप स्कूल्स में चले जाएँ वहाँ सहूलियात नहीं हैं, आप रोड्स पे चले जाएँ तो वहाँ पे रोड्स की हालत बुरी है, आप पार्क्स में चले जाएँ तो उनकी हालत बुरी है। तो हमें ओवरऑल जो है अपने लोगों का जो मेयार ज़िंदगी है उसको बुलंद करने की ज़रूरत है। तो इसमें स्पेसिफ़िक मैं नहीं समझता कि कोई एक तरफ हमारी तवज्जो है। हमारी कोशिश है कि ओवरऑल जो है इस पर तवज्जो दी जाए। बहरहाल कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनका ऊपर ख़ास तौर पे फोकस रहता है और हमारी खुद भी कोशिश रहती है और अपने दूसरे नुमाइंदगान से सूबाई या कौमी नुमाइंदगान है उनसे भी हमारी जो है यही आप कह लें कि हमारी रहती है उनसे गुजारिश के, जिसमें कि यूनिवर्सिटी सबसे सर फहरिस्त है इस इलाके की यूनिवर्सिटी, जिसकी वजह से शऊर में बेदार होना और लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलना है। हमारे कोट मिठन के लिए ख़ास तौर पे हॉस्पिटल जो है सिविल हॉस्पिटल या कम से कम या इसको THQ लेवल तक अपग्रेड होना चाहिए, वो है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो है रोड्स का थोड़ा सा निज़ाम बेहतर होना चाहिए। सेवरेज का एक हमारा मेन मनसूबा पाइपलाइन में, हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो तो जल्द शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हमारा सबसे बड़ा मसला सुई गैस का है। पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में सिर्फ ये तहसील है जो सुई गैस ज़िला है जो सुई गैस से महरूम है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो तो हमारी ज़ाहिर है सबकी कोशिश है, प्रायोरिटी पे हैं, लेकिन ओवरऑल जो हमारी बेसिक नीड्स हैं वो तमाम स्ट्रक्चर जो है इम्प्रूव होने वाला है। तो कोशिश तो ये होती है कि इंसान या हमें जब अल्लाह ताला मौका देता है तो हम हर जगह पे उसको टारगेट करें और कोशिश करें कि हर चीज़ में डिलीवर कर सकें। लेकिन उसमें सबसे बेहतर सबसे ये तभी चीज़ें मुमकिन होंगी जब आवाम जिन नुमाइंदों को मुंतखब करती है, जिन इदारों को मुंतखब करती है, उनको बाकायदगी से और इख्तियारात के साथ चलने दिया जाए। मैं समझता हूँ कि अगर 15-20 साल भी आप लगातार जो है इनको
बलदियाती इदारों को चलने दें तो हमारे छोटे छोटे शहरों में और देहातों में हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। हमारी शख्सियत प्रोग्राम में आप हमारे आज के मेहमान थे और आज हमारा इस प्रोग्राम का पहला दिन था, तो हम चाहते हैं कि आप आवाम के लिए एक ऐसा मैसेज दें कि जो कि उनके लिए एक ऐसी चीज़ हो जिसको लेकर वो आगे बढ़ें और आप इस शहर के लिए जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ बेहतर कर सकें। आवाम के लिए सिर्फ यही मैसेज है कि पॉजिटिव होकर सोचें, नेगेटिविटी से दूर रहें। ख़ास तौर पे हमारे नौजवान जो हैं आजकल के वो चमकने वाली चीज़ों से बहुत जल्द मुतासर हो जाते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव होकर सोचें, अपना पूरा हिसाब किताब करके अपने सही नुमाइंदों का इंतखाब करें। आप अपने इर्द गिर्द देखें कि कौन आप में मौजूद हैं, ना सिर्फ इलेक्शन में नहीं, इलेक्शन में तो बहुत से जो है कह रहे हैं कि फसली लुटेरे बर्ड यूज होता है आ जाते हैं, लेकिन आप उन आयाम में देखें कि जब सियासतदानों को आपकी ज़रूरत नहीं है और कौन आप में मौजूद है, आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है या आपके साथ हैं। कोशिश करें ऐसे नुमाइंदों को और ऐसे लोगों का इंतखाब करें और बग़ैर किसी मैं समझता हूँ कि रिश्तेदारी को देखे बगैर और बग़ैर किसी बिरादरी को देखे बगैर, बग़ैर किसी कास्ट को देखे बगैर हम इन चीज़ों से मारवा होकर मेरिट पे इंतखाब करें, ताकि जो हमारे ओवरऑल मसाइल हैं वो बेहतर हो सकें और अच्छे नुमाइंदगान असम्बलियों में, कमेटियों में और दीगर इदारों में जा सकें जो कि आपकी आवाज़ को भी सही तरीके से उठा सकें और जो आपके मसाइल हैं उनको समझते हों और उनका हल भी करने की कोशिश करें। शुक्रिया। आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हमज़ा कमाल फरीद मलिक, जो कि सियासी ज़िंदगी में, समाजी ज़िंदगी में और कारोबारी ज़िंदगी में अपने आप को मनवा चुके हैं। हमने उनका ये प्रोग्राम सिर्फ इसलिए रखा कि हम आपको मोटिवेट कर सकें कि किस तरह से इंसान किस किस्म की मुश्किलात, हर्डल्स और उनके ज़रिए एक मकाम और एक स्टेटस तक पहुंचता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के साथ हम आपके साथ लिंक रहें। शुक्रिया।